Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. In today's video, I will be teaching class 12th topic and as we were doing in our previous videos, the fundamentals of partnership. So today also I am taking the further part of that is interest on drawing. So students, आज का मेरा topic है interest on drawings. So you all must be knowing what are the drawings. Drawings is the money withdrawn by the owner for his personal use. Okay, so you have done that in your sole proprietorship business in class 11th also. And what was the treatment? आप क्या करते थे drawings को? You were deducting the drawings from the capital of the owner. As single owner was there, so no interest, nothing, no clause you have done like that. लेकिन जब हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं, where more than one partner or one person is the owner, यानी two or more persons are the owner of the firm. So what they have to do, they can withdraw different amounts. Okay, they can also fix one amount that every partner will withdraw this much amount of drawings every month or every 6 months or every 3 months. यानी that clause also they can make in their partnership deed. But if the partners are withdrawing different amounts, so they can make a clause, or generally they make a clause in the partnership deed that rate of interest will be charged on the drawings. Okay. So आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही ये क्लॉज मेंशन होती है कि अगर एक पार्टनर जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेगा उसके ऊपर 6%, 8% या 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. So if one partner withdraws extra amount, so he will pay extra interest. And if another partner withdraws less amount, so he will pay less interest. Okay. So the rate is given in the partnership deed only. So that will be mentioned in your question. वो आपके question में ही रहेगा कि what rate of interest is there for drawings. Okay. So what the firm will charge interest on the drawings of the partner. Okay. So there are different methods of calculating interest on drawing. So today I am telling you the formulas of those methods, and in my next video I will be telling you the journal entries of interest on drawing and interest on capital. Okay, though interest on capital formulas also I have told you in my previous videos. So आज का जो है मेरा methods of calculating interest on drawing main is this. So first method which is there is your average period method. In this आपका average period यानी the drawings का जो interest होता है उसको किस basis पे लिया जाता है? Average basis पे. And it is calculated if I am taking first condition in that is when a uniform amount and the fixed time interval is there for drawings. यानी uniform amount means fixed amount. Like एक partner जो है वो 2000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो time interval भी fix हो गया monthly basis पे. And the amount is also fixed, like 2000. So one partner is withdrawing 2000 every month and another partner is withdrawing 3000 every quarter. You know the meaning of quarter? Quarter means 3 months time period. तो एक साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो आपको टोटल ड्राइंग्स के लिए उतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर हो गया ना? So here the fixed time interval can be monthly also and can be quarterly also. तो time interval is also fixed and amount is also fixed. तब आपके ये वाले methods apply होंगे. That means the method will not be mentioned in your question. That you have to decide on your own. वो आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा by seeing the condition. अगर वहां पर ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे दी है तो आप ये वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे. क्वार्टरली के लिए दी है तो क्वार्टर वाला लेंगे, और अगर कोई डेट नहीं दी है तो अनदर मेथड्स आते हैं. ठीक है. सो पहला वाला स्टार्ट कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज योर व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट एंड द फिक्स्ड टाइम पीरियड इज गिवन फॉर विड्रॉइंग द मनी. तो पहला मेथड है जैसे इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. अगर एक पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है अमाउंट, तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12. तो ये जो 6.5 मंथ्स ले रहे हैं आप, 12 आपका क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. ओके. एंड 6.5 मंथ्स यू आर टेकिंग ऑन एवरेज बेसिस. ओके. सो इसमें आपकी क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स. पहले आपको क्या निकालनी है? टोटल ड्रॉइंग्स. लाइक इफ इट इज गिवन 2000 पर मंथ, तो आप पहले टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे? टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग इंटू 12. ओके.
सो मंथली ड्रॉइंग आपकी 2000 है और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इज 12, तो 2000 into 12 will be 24,000. 24,000 will be your total drawings into rate upon 100. The rate will be given to you 5%, 10%, 8% and into 6.5 upon 12. तो month, how many months you are taking on average basis? 6.5. Okay. अब हम आते हैं next वाले में. In the middle of each month, if the partner withdraws the drawings or the money, fixed amount, in the middle of each month, you know the meaning of middle? That means 14, 15. That means around the mid of the month. आपकी 15 तारीख भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है. तो जो भी 14, 15 या 16 के अंदर जो मनी वो विड्रॉ करेगा, यानी हर पार्टनर की फिक्स हो गई डेट, सो ही विल विड्रॉ ऑन 14, 15 और 16 इन द मिडल ऑफ मंथ. तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 विल रिमेन सेम, बट आप कितने मंथ्स लेंगे? 6 मंथ्स लेंगे ऑन एवरेज बेसिस. ओके, सो ऑन एवरेज बेसिस यू विल टेक 6 मंथ्स. अब आते हैं एंड ऑफ ईच मंथ. अगर पार्टनर जो है फिक्स्ड अमाउंट एंड ऑफ ईच मंथ पे विड्रॉ करता है, तब आपने क्या लेना है? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12. अब देखिए इन तीनों को अगर आप ध्यान से समझें तो इसको हम टिप्स पे याद कर सकते हैं. अगर वो बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो आपका 6.5, मिडल ऑफ द मंथ है तो 6 एंड अगर एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5. तो ये आपके मंथ्स है. रेट विल रिमेन सेम, टोटल ड्रॉइंग्स विल रिमेन सेम, नो चेंज. ओके, अब आ जाते हैं हम इन द बिग क्वार्टर. क्वार्टर वाला पार्ट मैंने लिया अभी. क्वार्टर हम किसको बोलते हैं? 3 मंथ्स के पीरियड को. तो एक साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं. तो टोटल ड्रॉइंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लाइक 3000 ईच क्वार्टर, तो 3000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं. ठीक है, सो 3000 इंटू 4 यू विल मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 12,000. ओके, 3 इंटू 4 12,000. अब 12,000 विल बी द टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर. सो अब आप इसको फॉर्मूला इसके लिए क्या लेंगे? अगर तो वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग मतलब शुरू में, बिल्कुल. अब क्वार्टर आपके कैसे शुरू होते हैं? पहला क्वार्टर होता है आपका अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल टू 30 जून. सेकेंड क्वार्टर इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर. Then third quarter is from 1st October to 31st December and fourth quarter is from 1st January to 31st March. 3 महीने के 4 पीरियड्स हो गए. ओके, सो अब इसके अंदर आपका पहले अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो टोटल ड्रॉइंग्स, यानी आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो आपके पास टोटल ड्रॉइंग आ गई. टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12. तो 7.5 मंथ्स आप इसमें लेंगे ऑन एवरेज बेसिस. ओके, ऑल्दो इसको निकालने का तरीका होता है, बट दैट इज नॉट इन योर यूज. इफ यू विल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ओके, सो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो आपके ये मंथ्स ही चेंज होंगे, यानी टोटल ड्रॉइंग्स विल रिमेन सेम, रेट विल रिमेन सेम, ओनली द मंथ्स विल चेंज. अब 7.5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 6 मंथ्स. अगर मिडल ऑफ द क्वार्टर होगा तो 6 मंथ्स और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो आपके आ जाएंगे टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12. तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देन यू विल टेक 7.5 मंथ्स. आप कितने लेंगे? 7.5 अपॉन 12, दैट मीन 7.5 मंथ्स लेंगे. और अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो आप कितने लेंगे? 6 अपॉन 12. और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 अपॉन 12. तो 6 मंथ्स इन द मिडल एंड एंड के लिए आप क्या करेंगे? 4.5 मंथ्स लेंगे. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड पे. अब प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? व्हेन द डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर गिवन. यानी अमाउंट भी डिफरेंट है और जो डेट्स है वो भी डिफरेंट है. लाइक एक ड्रॉइंग उसने करी 31 जुलाई को, दूसरी ड्रॉइंग्स करी उसने 31 अक्टूबर को, तीसरी उसने करी 1 दिसंबर को और फिर फोर्थ वाली करी 1 फरवरी को. तो हर एक का डिफरेंट टाइम पीरियड हो गया, नो यूनिफॉर्मिटी इज देयर. तब आपने क्या लेना होता है? यू विल टेक टोटल ऑफ प्रोडक्ट. तब ये फॉर्मूला लेंगे. तो फॉर्मूलास आप लोगों को याद करने पड़ेंगे. टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 और 1 अपॉन 365. दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, 1 अपॉन 365 और 1 अपॉन 12. अब ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट आपका निकलेगा जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है, यानी द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज 5000. ओके, एंड उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च तक आप मंथ्स निकालेंगे. लाइक अगर मैंने बोला पहली जो उसने ड्रॉइंग करी वो 31 जुलाई को करी,
तो 31 जुलाई तक के बाद से आप 31 मार्च तक के मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, जुलाई आपका फिनिश हो गया 31 जुलाई के, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी 8 मंथ्स का आप उसमें चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को, इट विल कम 40,000। दूसरी ड्राइंग उसने करी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो 6 से उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपके जितने प्रोडक्ट्स आएंगे लाइक 3 और 4 और 2, उनको आप एड अप करेंगे, यू विल गेट टोटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और यू कैन से 1/365, दोनों सेम है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं या एक साल में 365 दिन होते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब आ जाते हैं हम सिंपल मेथड पे। अब सिंपल मेथड में आपका क्या लेना है, आपको इफ नो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, अब कोई ड्रॉइंग की डेट ही नहीं दी, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द पार्टनर विड्रॉज 20,000, तो नो डेट इज गिवन। सो अब आप किस बेसिस पे लेंगे, एवरेज बेसिस के ऊपर। ठीक है, अगर कोई डेट नहीं दी है तो आप एवरेज बेसिस के ऊपर उसको चार्ज करेंगे, लाइक ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/10। एवरेज आपका क्या है, हमेशा एवरेज पीरियड 6 लेते हैं। ठीक है, तो 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज वी आर नॉट नोइंग एक्चुअल डेट ऑफ ड्रॉइंग। और अगर डेट इज गिवन, लाइक अगर एक ही डेट दी हुई है कि द पार्टनर विड्रॉज ऑन 15 अक्टूबर और ऑन 31 अक्टूबर 10,000 रुपीज, ओके, तो पूरे साल के अंदर एक डेट दिया आपको, तो आपने क्या करना है, फिर उतने मंथ्स का ले लेना है। लाइक 31 अक्टूबर तक आपके कितने मंथ्स खत्म हो जाते हैं, 7 मंथ्स खत्म हो जाते हैं, तो आगे कितने बचते हैं, कितने बचेंगे, अक्टूबर 31 तो फिनिश हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ्स आर देयर। तो अब आप कितने मंथ्स का लगाएंगे, 5 मंथ्स का चार्ज लगाएंगे, यानी 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, और वो मंथ्स कौन से होंगे, जिस डेट को विड्रॉ किया उस डेट से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा उतने मंथ्स आप यहां लेंगे। क्लियर हो गया। सो अगर एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है और अगर कोई डेट नहीं दी है तो 6/12 कर देंगे, अगर डेट दी है तो उस डेट से लास्ट तक का टाइम पीरियड लेकर आप कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अब लास्ट पार्ट जो हम इसमें लेते हैं, ये तीनों सिंपल मेथड ही है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वैसे वाला नहीं है, कंफ्यूजन। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट राइटिंग द वर्ड पर एनम, PA इज नॉट रिटन, यू नो द मीनिंग ऑफ पर एनम, P.A. इट इज रिटन, इसका मतलब होता है पूरे साल का 6% या पूरे साल का 8%, लाइक दिस। ओके, अगर वो पर एनम इज नॉट मेंशन, तब आपने क्या करना है, ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, तब आप टाइम पीरियड लेंगे ही नहीं, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू कंसिडर द टाइम फैक्टर, सो नो टाइम फैक्टर विल बी कंसिडर्ड इन दैट कंडीशन। ओके, आई होप आई मेड ऑल द फॉर्मूलाज वेरी क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहला है आपका एवरेज पीरियड, इसमें आपका मंथली बेसिस पे ड्रॉइंग्स अगर विड्रॉ होती हैं एंड अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन, तब अगर बिगनिंग वाला है तो आपने कितने मंथ्स का लेना है, 6.5 का, अगर मिडल है तो 6 मंथ्स का, और अगर एंड है तो 5.5 मंथ्स का। और अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 7.5 मंथ्स लेने हैं, और मिडिल ऑफ क्वार्टर है तो 6 मंथ्स लेने हैं, एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5 मंथ्स लेने हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड कब अप्लाई होगा, व्हेन डिफरेंट डेट्स आर गिवन, डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, यानी दोनों डिफरेंट है। तब आपने क्या लेना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ओके, और 1/365। सो इसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू द नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सिंपल मेथड के ऊपर। सिंपल मेथड में आपका क्या है, इफ वन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, ओके, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, तब तो आप उतने मंथ्स का निकाल लेंगे। ओके, उतने मंथ्स का मतलब लाइक जिस डेट को उसने विड्रॉ किया उस डेट से 31 मार्च तक जितने मंथ्स होते हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ नो डेट इज गिवन तो यू विल टेक 6 मंथ्स, ये दोनों मैंने इकट्ठे बता दिए। इफ डेट इज गिवन तो उतने मंथ्स जितने की वो डेट है, और अगर कोई डेट नहीं है तो देन 6 मंथ्स। और अगर इंटरेस्ट रेट के साथ में PA यानी पर एनम नहीं लिखा, देन यू विल टेक ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। तो आई होप
मैंने ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।